Dear students, in development economics, we use Gini coefficient to find out the income inequality. Here, we shall learn how we can use integration to calculate Gini index and interpret the situation. Let us see. So, we are going to use integration to find out Gini index. And we must know that Gini coefficient is calculated using the Lorenz curve. And Lorenz curve comes with an area and that area actually helps us to find out the Gini coefficient. So area is quite adjacent to the calculation of integration, and we shall see that integration will help us to find out that certain area which is under the Lorenz curve to a certain proportion. So this is what we are saying here, the importance of area in Lorenz curve, which is also considered in integration. And the Lorenz curve is plotted here and its name is Lx. So if there are more than one Lorenz curves, they will be known as L1, L2, and up to so on. So let us see. This is an example of the Lorenz curve in a diagrammatical way. You can see on x-axis, we have the fraction of wage earners, and on y-axis, we have fraction of income that is earned. That is the total income. So this is as per the standard theory of Gini coefficient and Lorenz curve. Now, there is a line that divides the quadrant that we have, and this line is y is equal to x. ये लाइन बेसिकली 45 डिग्री के एंगल पर काट रही है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को, और इसे हम कह सकते हैं कि इट इज़ शोइंग द कंप्लीट इक्वालिटी. Because if the Lorenz curve is on this line, the equilibrium will be there in a way that the people have perfect equality when it comes to their income. But it's not the case because the Lorenz curve hai, that is a little away, and that is y is equal to Lx. So you see it's not a straight line on the complete equality line. It is a little away and it's a curve and not a straight line. So this area actually, ये जो blue color का area आपको नजर आ रहा है, this is going to help us to find out the Gini coefficient. So हमें basically अगर formula याद हो of the Gini coefficient, तो it is the ratio between two areas. इसमें ये जो area है, that is R1, इसे हम तकसीम करते हैं R2 के overall area से. So this is what is informed in the last slide. और इसमें ये भी बताया गया है कि इसमें एक सर्टन रेंज है दैट इज़ फ्रॉम 0 to 1, और इस रेंज के दरमियान में हम बात कर रहे हैं बिकॉज द स्टैंडर्ड थ्योरी ऑफ जीनी कोफिशिएंट गाइड्स अस दैट द वैल्यू ऑफ अ जीनी कोफिशिएंट इज बिटवीन 0 and 1. Now we are considering this example for developing the formula, and this is the formula: area of R1, that is this shaded area, and area of R2, and that is the shaded area in the other panel of the diagram. So now one can consider that area under the curve can be found by using the integration. If I talk about R2, it is easy because it is between 0 and 1, and it is area under this curve, that is y is equal to x. तो हम इस एरिया की बात कर रहे हैं जो कि हम इजीली इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं. When it comes to R1, it's slightly different from that, क्योंकि इसमें हमारे पास ये दो कर्व्स के दरमियान में एरिया एग्जिस्ट कर, और ये हम ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर हम y इज इक्वल टू एक्स के एरिया को कंसिडर करें जो कि होल ट्राइंगल है, और उसमें से माइनस करें इस अनशेडेड ट्राइंगुलर एरिया को जो कि y इज इक्वल टू एल एक्स के अंडर मौजूद है. So in this way, we can calculate the area of this portion, which is R1, simply by subtracting the areas under this curve and that curve. So ये चीज़ आप देखेंगे आपको next slide में mathematically दिखाई गई होगी. This ratio is called as Gini index. Yes, we know that. And अगर हम उसे mathematically यहाँ पर देखें, तो it is area between y is equal to L x and y is equal to x. So this is that area. उस r के एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे R1, और जो R2 था दैट वाज द होल एरिया बिटवीन बिलो द y is equal to x curve, and that was a triangular area. और याद रहे कि ये रेंज जो है ये 0 से 1 तक है. नाउ दिस इज द अदर वे ऑफ राइटिंग. इंटीग्रेशन की सेंस में हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं
और इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों कर्व्स के डिफरेंस का डेफिनेट इंटीग्रल है बिटवीन 0 एंड 1, और ये है सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स कर्व का इंटीग्रल इन इट्स डेफिनेट वर्जन। नाउ इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि इसको सॉल्व कर लें, बिकॉज हमें एल एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता, लेकिन एक्स इज देयर। एक्स का जो आंसर आएगा आफ्टर इंटीग्रेशन इट विल बी समथिंग लाइक दिस। और ये अगेन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग योर नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन। एल एक्स वैसे ही हम कैरी करेंगे बिकॉज इट्स नॉट इन एनी स्पेसिफिक इक्वेशन, इट्स जस्ट अ फंक्शनल नोटेशन। इसे हम ऐसे ही चलने देंगे, जी आई इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास अब तक का फॉर्मूला जिसे हम आगे यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर हम सब्सटीट्यूशन करेंगे ऑफ अ फंक्शन दैट इज गिवन इन सम न्यूमेरिकल एग्जांपल। अब ये न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हम न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे। और इस न्यूमेरिकल एग्जांपल में बात ये कर रहा है दैट देयर इज गवर्नमेंट एजेंसी दैट डिटरमाइंस द लोरेंस कर्व फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फॉर डेंटिस्ट एंड कॉन्ट्रैक्टर्स इन अ सर्टेन स्टेट, एंड दिस फंक्शन आर गिवन एज फॉलोज। सो ब्रॉडली स्पीकिंग वो ये बता रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी ने एक कैलकुलेशन की है, और वो है फॉर द जीनी कोफिशिएंट ऑफ द डेंटिस्ट एंड द कॉन्ट्रैक्टर्स। इन दोनों के जो जीनी कोफिशिएंट्स हैं उन्हें हम असेस करके पॉलिसी इम्प्लीकेशन के लिए सजेशन दे सकते हैं। सो जो लोरेंस कर्व है वो हमारे पास गिवन है बिकॉज दे शो द कर्व, और वो हम यूज़ करेंगे। सो हमने कंपैरिजन करना है फॉर विच प्रोफेशन, और सॉल्यूशन में हम जीनी कोएफिशिएंट में दोनों को कैलकुलेट करेंगे, डेंटिस्ट एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, और देखना यह है कि किसका जीनी कोएफिशिएंट ज़्यादा है और किसका कम। लोरेंस कर्व पहले के लिए हमने L1 से और दूसरी को L2 से हमने डिनोट कर दिया। पहले डेंटिस्ट की हम बात कर रहे हैं, और डेंटिस्ट की लोरेंस कर्व ये है, उसकी सर्टेन वैल्यू हमें प्रीवियस एग्जांपल्स प्रीवियस स्लाइड्स में गिवन थी। सो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड दैट वैल्यू। द रिमेनिंग थिंग्स दे विल रिमेन द सेम, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एट दिस स्टेज। हाउएवर आपके लिए स्मॉल DIY, आप ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करेंगे एंड यू विल कम टू द फाइनल आंसर ऑफ GI ऑफ डेंटिस्ट, दैट इज जीनी कोएफिशिएंट फॉर द डेंटिस्ट। इसकी वैल्यू ये है हमारे पास, और उसके बाद जीनी ऑफ इंडेक्स फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स वो हम कैलकुलेट करेंगे इन द सेम वे। यहाँ पर सिर्फ नोटवर्दी बात ये है कि इनकी जो लोरेंस कर्व है इसका एक डिफरेंट फंक्शन है बिकॉज द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। और फर्दर जो है सोल्यूशन, आई एम होपफुल कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इजीली कर सकते हैं। अगेन ये फर्दर स्टेप्स हैं फॉर द कैलकुलेशन विच अगेन यू कैन डू, और ये है हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो कि है 0.2667। सो ये है जीनी कोएफिशिएंट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर्स। अब हम इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं और ये देखेंगे कि इसका कंपैरिजन डेंटिस्ट की जो जीनी कोएफिशिएंट है उससे कैसा है। इसकी वैल्यू ज़्यादा, 0.2667 इज ग्रेटर देन 0.2593। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका जीनी कोएफिशिएंट ग्रेटर। अब इसकी इंटरप्रिटेशन यही होगी कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके दरमियान जो इनकम इनइक्वालिटी है वो ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू द डेंटिस्ट। इसकी रियल लाइफ रीज़न भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिकॉज़ आपको पता है जो डेंटिस्ट होते हैं दे हैव अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ एजुकेशन। उनमें कुछ स्पेशलाइज़ कर सकते हैं या कुछ फर्दर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, बट ब्रॉडली स्पीकिंग उसके अंदर जो रिटर्न्स हैं वो सिमिलर होते हैं, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बट व्हेन इट कम्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स यू सी के उसके अंदर किसी कॉन्ट्रैक्टर को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, किसी को छोटा कॉन्ट्रैक्ट, किसी को दरमियाने लेवल का। तो इसी के देयर इज़ अ डिस्पर्शन व्हेन इट कम्स टू द पॉसिबिलिटीज़। दैट इज़ व्हाई आप देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स में हमने यहाँ पर जो कैलकुलेशन की, वो यही शो कर रही है कि अमंग द कॉन्ट्रैक्टर्स द इनकम इनइक्वालिटी इज़ ग्रेटर, और जो कि हमने जीनी कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करके वेरीफाई की, एंड ऑल ऑफ इट वाज़ डन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, and that is how integration can help us. Thank you.